میں نے جب سے آنکھ کھولی تو ابا کو گرمی سردی میں مزدوری کرتے دیکھا، اور اب ابا کی بوڑھی ہڈیاں جواب دے چکی تھی اور وہ گھر بیٹھ گئے تھے۔ بھائی نے ابا کو گھر میں فارغ دیکھ کر بولا، جاؤ جا کر کماؤ اور بیوی بیٹی کا خرچہ اٹھاؤ۔ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے جو میں تم لوگوں کا بوجھ اٹھاؤں؟ یہ سن کر اماں سسکیاں بھر کر رونے لگی تو ابا نے ہمارا ماں بیٹی کا سامان باندھا اور کہا، کل ہم ادھر سے جا رہے ہیں، اور اگلے دن اٹھ کر گھر پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔ جلتے گھر کو دیکھ کر بھائی کے ہوش اڑ گئے اور ابا نے کہا کہ اب بھائی کے چلانے کی آوازوں کے شور سے میری آنکھ کھلی تھی۔ آج پھر وہ ابا پر چلا رہا تھا۔ چند دن سے یہی تماشا ہو رہا تھا۔ جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی وہ ایسے ہی ہم پر چلانے لگے تھے۔ 2 ماہ ہی گزرے تھے ابھی کہ وہ ابا سے یہ کہتا تھا کہ مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، پورے گھر کا خرچہ اماں اور چھوٹی بہن کی ذمہ داری میری نہیں ہے، میں کیوں پالوں، میرے اپنے بہت سے خرچے ہیں۔ میں یہ سن کر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ابا سامنے صحن کے چارپائی پر گردن جھکائے بیٹھے تھے، اماں بھی اپنے آنسو پوچھ رہی تھی اور بھائی ان پر چلا چلا کر بول رہا تھا۔ ابا تو یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ 2 ماہ میں ہی بھائی کو ہوا کیا ہے۔ پہلے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا نہ تھا۔ اچانک میری نظر کمرے کے دروازے پر کھڑی بھابھی پر پڑی، جس کی چہرے پر سجی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ سب کچھ بھابھی کا ہی کیا دھرا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا ابا کو ہمیشہ پرانے کپڑوں میں ہی دیکھا تھا۔ میرا ابا مزدوری کرتا تھا، دن بھر اینٹیں اٹھاتا اور گھر کو تعمیر کرتا۔ جب وہ شام کو گھر لوٹتا تو بری طرح سے تھکن سے چور ہوتا۔ اس کی پوسیدہ کپڑوں پر مٹی گارا لگا ہوا ہوتا، پورے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوتے، پاؤں کی ایڑیاں ننگے پاؤں کام کرنے کی وجہ سے پھٹ جاتی تھی۔ گھر آتے ہی وہ چارپائی پر ڈھہ جاتے۔ اماں جلدی سے کھانا گرم کرنے لگتی، میں فٹافٹ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے پانی کا ڈبہ لیتی اور ابا کے ہاتھ پاؤں دھلوانے لگ جاتی۔ لیکن اس تھکن میں بھی ابا کو بھائی کا ہی خیال ہوتا۔ اماں سے کہنے لگتے کہ سلمان کہاں ہے، اس نے دودھ تو پیا ہے نا؟ اماں کہتی کہ سو گیا ہے۔ ہاں میں نے اسے گرما گرم دودھ دے دیا تھا۔ ابا کہتے بادام بھی ساتھ دے دیا کر، نیک وقت اتنی پڑھائی کرتا ہے، مجھے تو پہلے سے کمزور لگنے لگا ہے، بیٹے کا خیال رکھا کر، کل کو جب یہ افسر بن جائے گا تو ہماری ہی زندگی آسان ہوگی۔ میرا بھائی مجھ سے 10 سال بڑا تھا، میں 5 سال کی تھی، اور سلمان بھیا 15 سال کا تھا، 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ابا نے مجھے گورنمنٹ کے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ کہتے بیٹی پر زیادہ خرچہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پرایا دھن ہوتی ہے، بیٹا میرا اپنا ہے۔ سلمان بھیا ہمارے شہر کے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا تھا۔ ابا نے 2 جگہ مزدوری کی تھی۔ صبح 6 بجے ابا گھر سے چلے جاتے اور دوپہر تک ایک گھر کو بنانے کی مزدوری کرتے، اور پھر وہیں سے دوسرے گھر کو بنانے کی ذمہ داری ابا نے لے لی تھی۔ شام کے 7-8 بجے جاتے تھے۔ ابا کو گھر آتے آتے کبھی کبھی تو ابا رات کو 10 بجے بھی واپس آتے تھے، کیونکہ سلمان بھیا کی اسکول کی فیس بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کی کتابوں کے خرچے، روزانہ جیب خرچے میں 100 روپیہ وہ ہر روز لے کر جاتا تھا، اور جب میری باری آتی تو اماں مجھے گھر کا بچا ہوا پراٹھا دے دیتی کہ تو یہی لے جا اور اسی سے گزارا کر، جب تیرا بھائی افسر بنے گا تو تیرے سارے ناز اٹھائے گا۔ میں بھی خاموش ہو جاتی۔ حالانکہ میں 5 برس کی تھی، لیکن اماں کے ساتھ چھوٹے موٹے کام کروانے لگی تھی۔ اماں جب گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تو پراندے بنانے شروع کر دیتی۔ اماں بہت خوبصورت شیشے والے پراندے بناتی تھی، اور اکثر محلے کی عورتیں وہ پراندے لے کر جاتی۔ کچھ نہ کچھ پیسے اماں کو وہاں سے مل جاتے تھے۔ میں بھی اماں کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے لگی تھی، پر پیسے اماں کے پاس ہی جاتے تھے۔ جب میں مانگتی تو کہتی کہ تو نے کیا کرنے ہیں، یہ تو میں تیرے بھائی کے لیے سنبھال رہی ہوں، اس کو میں نے نئے کپڑے لے کر دینے ہیں، اس کے اسکول میں کوئی فنکشن ہے۔ کہہ رہا تھا کہ اماں اس بار میں پینٹ شرٹ لوں گا، تجھے پتا ہے نا کتنی مہنگی آتی ہے، تیرے ابا کون کون سے خرچے پورے کریں گے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ان کی ہر خواہش مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھائی کے لیے ہمارے گھر اچھا کھانا کم ہی بنتا تھا، لیکن جب بھی بنتا امی ساری بوٹیاں بھائی کی پلیٹ میں ڈال دیتی، اور جب میں اماں سے کہتی کہ اماں میں نے بھی کھانی ہے تو اماں مجھے گھورنے لگتی، کہتی وہ پڑھتا ہے، اس نے بڑے ہو کے افسر بننا ہے، اسے اچھی خوراک کی ضرورت ہے، تو نے کون سا ہمیں کما کر دینا ہے، چل جو ملا ہے یہی کھا، سمجھی۔ اس معاملے میں اماں میرے ساتھ بھی کئی زیادتیاں کر جاتی تھی، جسے میں صرف اس لیے سہ جاتی کہ میرا بھائی افسر بنے گا تو میرے ناز نخرے اٹھائے گا، میری خواہشات کو پورا کرے گا۔ وقت تھوڑا آگے بڑھا، بھیا اسکول سے کالج میں آ گیا، اور پھر اس کے خرچے بھی بڑھ گئے۔
अम्मा जहाँ रोज के 10 परांठे बनाती थी वहाँ 20-25 बनाने लगी। साथ में मुझे भी काम पर लगा लेती। हम माँ बेटी रोज के 50 परांठे बनाती। अम्मा की एक दुकानदार से बात भी हो गई थी। इसका मुलाजिम आता, रोज के हमसे परांठे लेकर चला जाता। पूरा दिन घर के कामों के बाद हम बस यही काम करते रहते। कभी परांठे पर शीशे लगाते, कभी घुंघरू वाले परांठे बनाते और वो पैसा सलमान भैया ले जाता। अब्बा को आए रोज खांसी आने लगी थी, कभी बुखार हो जाता, इनकी हड्डियों में दर्द होने लगा था। जाहिर है वक्त के साथ साथ अब्बा बूढ़े होने लगे थे और भाई कड़ेल जवान। मुझे नहीं याद कि सलमान भैया कभी रात को दूध पिए बगैर सोए हो। सुबह उठते ही अम्मा 7 दाने बादाम के भाई को दे देती और कहती ये खा, और साथ में दूध में मक्खन डालकर कहती कि फटाफट से पी जा, तो इतनी मेहनत करता है, तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता तो मैं कहती अम्मा मुझे भी आज दूध पीना है, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई वाली चाय पीकर थक जाती थी और इसके साथ पराठा भी हलक से नहीं उतरता था। जो आधा पराठा बचा जाता वही अम्मा मुझे कहती कि जा स्कूल ले जा, भूख लगी तो खा लेना। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा और भाई कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गया, लेकिन अम्मा ने मुझे 10वीं के बाद स्कूल से हटवा लिया। कहने लगी कि बस बहुत पढ़ लिया तूने, अब घर के काम की तरफ तवज्जो दे दो। ये दूसरी कुर्बानी थी कि मैंने दी थी। हालांकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि अम्मा भी परांठे बनाते बनाते थक गई थी। मैंने पूरा घर संभाल लिया था। अब्बा जब मजदूरी करके आते तो मैं इनके कंधे दबाने लगती। वो मुझे ढेर सारी दुआएं देते, कहते मेरी बच्ची का नसीब अल्लाह ने बहुत अच्छा खोल देना है। मैं इसी में खुश हो जाती। बचपन से अम्मा ने बस सब्र करना ही सिखाया था, इसलिए हर चीज़ हर ख्वाहिश मुझे अपने अंदर दबाने की आदत हो गई थी। अब तो अच्छा खाना बनता तो मैं सबसे पहले भाई के लिए अलग से साला निकाल देती। बाकी अम्मा अब्बा जब खा लेते तो जो कुछ पतीले में ज़रा सा बच जाता, इसी को मैं रोटी के साथ साफ करके खा लेती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी किस्मत भी बदल गई। इस दिन भाई बड़ा खुश था, मिठाई का डब्बा लेके घर आया था। अम्मा से कहने लगा इसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरे वालिद की झुर्रियों से भरे चेहरे पर जानदार मुस्कान आई थी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी भर की थका देने वाली मुसाफिर का इन्हें अब सलाह मिला हो। अब्बा अभी मजदूरी करके लौटे ही थे कि बेइख्तियारी अब्बा ने भाई को सीने से लगाकर खींच लिया, लेकिन अगले ही लम्हे भाई ने इन्हें पीछे झटका था। सलमान भैया कहने लगा अब्बा क्या करते हैं आप भी, अपने कपड़ों तो देखें, गारे मिट्टी से भरे हुए हैं, और मेरा सूट देखें, निशान पड़ गए तो कल क्या पहनकर दफ्तर जाऊंगा। मेरे पास कौन से 20-100 जोड़े हैं जो रोज बदल कर जाऊं, 3-4 ही नए रखे हैं ताकि हाफिज में अच्छे कपड़े पहनकर जाऊं। मुझे सलमान भैया की यह अंदाज अच्छा नहीं लगा था। ये बात तो वो अब्बा से आराम से भी कह सकते थे। भैया के माथे पर तेवरी चढ़ी हुई थी, नागवारी से अब्बा को देख रहे थे। उल्टा अब्बा इसे माजरत करने लगे, कहने लगे बेटा माफ कर दे, बस खुशी इतनी थी कि मैं देख ही नहीं सका कि मेरे कपड़े मैले हैं, तेरे कपड़ों को दागदार कर देंगे, लादे में धो देता हूँ। हालांकि सलमान भाई की शर्ट पर कोई भी दाग न था, लेकिन भाई उल्टे हाथ मारता हुआ अपने कमरे में चला गया। भाई काम पर जाने लगे। एक बार अम्मा ने अब्बा से कहा कि सुनिए जी, अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, खैर से हमारा बेटा कमाने लग गया है, इसकी तनख्वाह अच्छी खासी है, अब आपको कोई जरूरत नहीं है वो सीधा कपड़े पहनकर यूं ईंटें पत्थर उठाने की। अब तो हमारे सुकून और आराम से बैठने के दिन आए हैं। ये सुनकर अब्बा मुस्कुराए, कहने लगे नेक बख्त, ठीक ही कह रही हो तुम, मैं अभी अभी ये मजदूरियां करके थक गया हूँ। ये बात जब रात को सुलेमान भैया को अम्मा ने बताई तो वो भी कहने लगा अब आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब मेरी बारी है कि मैं आप लोगों को कमा कर खिलाऊं। ये सुनना था कि अब्बा के चेहरे पर ऐसी खुशी छाई कि ये सुनकर ही इनका ढेरों मन खून बढ़ गया था। सलमान भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से अम्मा अब्बा को बहुत प्यारे कपड़े लाकर दिए, एक जोड़ा मुझे भी लाकर दिया। मैं इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं। अपनी सहेलियों को दिखाने लगी कि मेरे भैया बड़े अच्छे हैं, मेरे लिए जोड़ा लेकर आए हैं। इससे अगली तनख्वाह पर भाई ने कहा कि घर बहुत पुराना सा लगने लगा है, इसने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत भी करवा दी। अब अब्बा घर पर ही रहते थे, साफ सुथरे कपड़े पहनकर बस मस्जिद जाते और नमाज पढ़ते। जो बातें अम्मा अब्बा ने जवानी में नहीं की, शायद अब बैठकर करने का वक्त था, क्योंकि बच्चों की पैदाइश इनकी ख्वाहिशात में मेहनत और मजदूरी पर वो ऐसे उलझे कि आपस में कभी बैठने उठने का वक्त नहीं मिला था। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये वक्त भी बहुत खलील होगा। भैया की नौकरी को अभी 5 माह ही गुजरे थे कि भैया कहने लगे
کہ वो शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर अब्बा कुछ मुतफक्किर से हुए थे। कहने लगे, सलमान इतनी जल्दी से भी क्या है, अभी तो तूने कमाना शुरू किया है, थोड़े पैसे बना ले, शादी फिर कर लेना। लेकिन भैया कहने लगे कि नहीं, इन्हें अपने ऑफिस में बॉस की बेटी अच्छी लगने लगी है। अगर मैंने जल्दी इसे रिश्ता ना तय किया तो इसका बाप इसकी शादी किसी और से करवा देगा। मेरे बॉस मेरे काम से बहुत खुश है। बड़ी बेबाकी से भाई ने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था। मैं और अम्मा तो एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। अब्बा की नज़रें भी ये सुनकर झुक गई। अब्बा कहने लगे, हमारा इन अमीरों से क्या जोड़ है। भाई कहने लगा, मेरी शादी इस लड़के से ना हुई तो मैं जान दे दूंगा। भाई की धमकी सुनकर अम्मा का हाथ सीने पर जा पहुंचा था। कहने लगी, ऐसी बात मुंह से ना निकाल, खुदा ना करे कि तुझे कुछ हो। ठीक है, तू जहां कहता है हम तेरा रिश्ता ले जाते हैं। अगले रोज ही भाई, अम्मा, अब्बा और मुझे भी साथ लेकर इस लड़की के बंगले पर पहुंच गए। हम तो इसका इतना बड़ा बंगला देखकर ही हैरान थे। हमें अपना आप बहुत छोटा सा महसूस हो रहा था। जिन सोफों पर हमें बिठाया गया था, हमें यूं महसूस हो रहा था कि हमारे बैठने से ये मैले ना हो जाए। वो घर कहाँ था, वो तो एक शीश महल था। जब इस लड़की के वालिदैन आए और अम्मा अब्बा का सादा सा लिबास देखा तो मुंह बनाने लगे। फिर भैया से पूछने लगे कि इनके वालिद करते क्या हैं। भाई ने झूठ बोल दिया कि अब्बा का अपना एक जनरल स्टोर था, लेकिन अब वो कुछ नहीं करते। मेरे बाप ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था, इसलिए इनके सामने भी ये कह दिया कि नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो मजदूर बंदा हूँ, ईंटें पत्थर उठाता था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचाया है। अब्बा को सच बोलने की आदत थी, इसलिए जबान पर कंट्रोल ना कर सके। ये सुनते ही भैया के बॉस ने बहुत गुस्से में आ गए। कहने लगे, सलमान, तुम्हें एक मजदूर के बेटे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक मजदूर के बेटे होकर तुम मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आई हो। इस शख्स ने तो हमें जलील करके अपने घर से निकाल दिया। ना सिर्फ घर से निकाला बल्कि भैया को नौकरी से भी निकाल दिया। इस दिन भैया ने अब्बा से बड़ी बदतमीजी की थी, खुद भी बहुत रोया था। कहने लगा, ये मेरी बदनसीबी है कि मैं आपके घर पैदा हुआ। आपके सच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या था क्या आप अपनी जबान बंद रखते तो आज मैं एक करोड़पति शख्स का दामाद होता। अब्बा कहने लगे कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस शख्स को मजदूरों से इतनी नफरत है, मगर जिस महल में वो रहता है वो महल भी किसी मजदूर ने ही बनाया होगा, फिर मजदूर से कैसी नफरत। लेकिन भैया कहाँ अब्बा की कोई बात सुनने के काबिल थे। इसे तो अपनी मोहब्बत की छिन जाने का गुस्सा था। बहरहाल वक्त के साथ साथ ये वक्त भी गुजर गया। भाई ने दूसरी जगह नौकरी की, लेकिन अब वो अब्बा को तनख्वाह नहीं देता था, बस घर की जरूरत की चीजें ला देता था। अब्बा से बातचीत भी नहीं करता था। इस नौकरी को भी इसे करते हुए साल हुआ था कि वो कहने लगे कि इसे अपनी कुल्लियत अच्छी लगने लगी है, जो एक मुतवासन घराने से ताल्लुक रखती है। इससे शादी करना चाहता हूँ। अम्मा को लगा कि भाई की शादी हो गई तो खुद ब खुद इसका रवैया हमसे ठीक हो जाएगा। इस बार जब अब्बा भाई का रिश्ता लेने गए तो कुछ ना बोले। भाई का रिश्ता तय हो गया और बहुत जल्द रुमैसा मेरी भाभी बन गई। वो भी किसी अमीर घराने से ताल्लुक नहीं रखती थी, लेकिन इसका नखरा किसी अमीर लड़के से कम ना था। शादी की फौरी बाद इसने सबसे पहले अपने कमरे में एसी लगवाया था। कहने लगी कि एसी के बगैर वो बिल्कुल नहीं रहती। 15 दिन मैंने और अम्मा ने भाभी की बड़ी खिदमत की, इसे पाँव में जमीन पर रखने ना दिया। लेकिन इसके बाद जब इसको घर के कामों की जिम्मेदारी का कहा तो वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो पढ़ाई के बाद नौकरी शुरू कर दी थी। अम्मा कहने लगी कि तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। तो वो कहने लगी, ना बाबा ना, मुझे बावर्ची खाने में जाकर अपना रंग थोड़ी सिया करना है। हालांकि वो कोई बेहद खूबसूरत और हसीन लड़की ना थी, बस अच्छी प्यारी थी। इसके मुकाबले में मेरी रंगत ज्यादा सफेद थी। मेरी माँ कहने लगी, मेरी बेटी भी किचन के सारे काम जानती है और तुमसे बहुत छोटी है, आज तक इसके रंग रूप को तो कुछ ये हुआ। अम्मा का ये कहना था कि इसने माथे पर तेवरी चढ़ाई और अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाजा इसने बड़ी जोर से बंद किया था। शाम को जब भाई ऑफिस से आया तो सीधा अपने कमरे में गया। 15 से 20 मिनट बाद ही बड़े गुस्से से इसके कमरे का दरवाजा खुला था और वो अम्मा पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? पहले आपकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे छीन गई और आप चाहते हैं कि मेरी बीवी भी घर छोड़कर चली जाए। मेरी अम्मा कहने लगी, हम ऐसा क्यों चाहेंगे, मैंने तो बस इसे यही कहा कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा देती हूँ। भैया कहने लगे कि नहीं करेगी वो कोई काम, जहाँ आप 3 लोगों का खाना बनाते हैं तो क्या एक और का नहीं बना सकती?
जब इसे आदत नहीं है तो वो क्यों काम करे। भैया के मुंह से ये बातें सुनकर तो मेरी माँ चुप ही हो गई थी। भाभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। नाश्ते के लिए भी मुझे कहती थी कि मुझे नाश्ता बना दो, भूख लग रही है। मैं इसे इनकार करती तो भैया मुझ पर चिल्लाने लगता। अब्बा इसे कहते कि अगर ये लोग मेरी बीवी के खाने पीने का इंतजाम नहीं करेंगे तो फिर आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें, क्योंकि मैंने भी आप लोगों का ठेका नहीं ले रखा। आपकी बीवी और बेटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहली बार जब भैया ने ये बात की तो अम्मा और अब्बा तो सुनकर दम बहुत रह गए। अब्बा कहने लगे कि सारी जिंदगी तो मैं अपना खून पसीना एक करके तुम्हें पढ़ाता रहा हूँ कि कल को तुम अफसर बनोगे तो हमारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, कि मैंने तुम्हें इतने महंगे स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाकर इसलिए अफसर बनाया कि तुम मुझे ये कह सको कि मेरी बीवी और मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। वो कहने लगे आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, आपने वही किया जो एक बाप अपनी औलाद के लिए करता है। ये आपका फर्ज था कि आप मुझे तालीम दिलवा दें, लेकिन मुझ पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो फिर मेरी मान कर चलो। अगर आप लोग मेरी नहीं मानोगी तो आपके लिए घर के दरवाजे खुले हैं, जहां चाहे चले जाओ। ये बात सुनकर तो मेरे वालिद तो गुस्से से भैया पर हाथ उठाने लगा था, लेकिन अम्मा ने अब्बा का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कि सलमान तुम अपने कमरे में जाओ, आज के बाद वही होगा जो तुम चाहते हो। ये सुनकर अब्बा कहने लगे ये मेरा घर है, अगर किसी को घर से निकलना है तो ये निकले, मैं क्यों घर छोड़कर जाऊं। अम्मा अब्बा का बाजू पकड़े जबरदस्ती कमरे में ले गई। मैं भी अब्बा के पीछे चली गई। ये सब देखकर तो मेरा दिल बेहद घबराने लगा था। अचानक घर में क्या हो रहा था। अम्मा कहने लगी आप क्या कह रहे हैं, इस उम्र में हमें कहाँ लेकर जाएंगे, हम कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे। अब्बा बेतहाशा गुस्से में थे। कहने लगे कि मैं क्यों खाने लगा दर दर की ठोकरें, ये मेरा घर है, मेरे नाम पर है। ये घर से बाहर निकलेगा अपनी बीवी समेत। गुस्से के मारे अब्बू का सांस फूलने लगा था। अम्मा कहने लगी वो कमाता है तो इस घर की हंडी चूल्हा जलता है, इस उम्र में भी कहाँ मजदूरी करोगे आप। इससे बेहतर है कि बेटे की चार बातें सुन लेते हैं। मैं भी इस लड़ाई से खौफजदा हो गई थी। अम्मा रोने लगी थी। अब्बा की मिन्नत करने लगी कि वो मजीद कोई भी हंगामा ना करे, लेकिन भाई ने तो जैसे तमाशा सा पकड़ लिया था। जब जी चाहता यही बात सुनाते और जलील करने लगते। इसकी बीवी तमाशा देकर मुस्कुराती थी, हंसती थी। एक बार भैया कुछ कागजात लेकर आया और अब्बा को कहने लगा इस पर अंगूठा लगा दे। अब्बा ने कहा ये किस चीज के हैं, तो वो कहने लगा कि खुद पढ़ ले, मेरे माँ बाप दोनों ही अनपढ़ थे। भैया ने बड़ी हकारत से ये बात कही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब्बा पढ़ने लिखने नहीं है। वो कहने लगे कि ये मेरे ऑफिस के जरूरी कागजात हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर अब्बा के दस्तखत चाहिए, तो आप दस्तखत तो कर नहीं सकते, इसलिए अंगूठा लगा दें। मेरे अब्बा ने इन कागजात पर अंगूठा लगा दिया तो फिर भैया कहने लगा कि अब ये घर मेरे नाम हो चुका है। ये इस चीज के कागज थे कि आपने अपनी रजामंदी से ये घर मुझे दे दिया है। ये सुनकर तो हम तीनों की रंगत उड़ चुकी थी। सलमान भाई का ये रूप तो हम सोच भी नहीं सकते थे। सगा भाई होकर वो इतना बड़ा धोखा अपने ही माँ बाप और बहन को कैसे दे सकता था। अब्बा तो यूं थे जैसे बेजान हो गई। वो हंसने लगा, कहने लगा बड़ा घमंड था आपको कि ये घर आपका है, अब ये घर मेरा है। अगर दोबारा मेरे सामने किसी ने भी जबान चलाई तो धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। अपने भाई को देखकर मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे थे और आज फिर वही हो रहा था। अम्मा अब्बा चारपाई पर बेबस से बैठे गर्दन झुकाए भाई की बातें सुन रहे थे और वो बदतमीजी किया जा रहा था। कहने लगा कि मैं अब तुम लोगों का बहुत ज्यादा देर तक बोझ नहीं उठा सकता, जितनी जल्दी हो सके अपना कहीं और ठिकाना कर लो। अब्बा खामोशी से कुछ देर बैठे रहे। अम्मा सुसुकियों से रोती रही। फिर अब्बा घर से बाहर चले गए। शाम को वापस लौटे तो बहुत हाँफ रहे थे। कपड़ों पर वही मिट्टी और गारे के निशान थे। मैं समझ गई थी कि वो मजदूरी करके आए हैं। उन्होंने अम्मा के हाथ पर 500 का नोट रखा। कहने लगे आज के बाद अपना खाना अलग पका लेना, इस महंगाई में बस दाल रोटी ही चल सकती थी। अम्मा ने दाल रोटी बना ली। खाते हुए अम्मा की आंखें छिलक पड़ी थी। कहने लगी सारी जिंदगी इस बेटे की खातिर हमने बस सूखी रोटी ही खाई है। हमारी किस्मत ये इसके अफसर हो जाने का भी हमें कोई सुख न मिला। अब भी हम दाल रोटी ही खा रहे हैं। अगले रोज अब्बा जब घर पर आए तो कहने लगे कि तैयारी पकड़ लो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये सुनकर अम्मा रोने लगी। कहने लगी क्यों जज्बाती फैसला कर रहे हो, हम कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे, वो भी जवान बच्ची के साथ। लेकिन अब्बा ने ये ना सुनी।
अब्बा हमें एक छोटे से ड्रिप नुमा घर में ले गया जो एक कमरे पर मुश्तमिल था, लेकिन अगले ही रोज जो क़यामत टूटी वो बयान से ही बाहर थी। अब्बा रात को ना जाने कहाँ चले गए। आधी रात को वापस आए तो बदहवास थे। इनके कपड़ों से अजीब पेट्रोल की बू आ रही थी। अम्मा ने पूछा कि इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं, तो कहने लगे कहीं नहीं, किसी का कर्ज उतारने था। बहुत शोर कर रहा था इसलिए वो उतार कर आ गया हूँ। सुबह सुबह किसी ने हमारे दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अम्मा ने दरवाजा खोला तो हमारे पुराने मोहल्ले का पड़ोसी था। कहने लगा रात को तुम्हारे घर आग लग गई थी, तुम्हारा बेटा और बहू इस वक्त हॉस्टल में बुरी तरह से जल चुके हैं। ये सुनना था कि मेरी माँ रोने लगी, लेकिन मेरा बाप पत्थर की मूरत बना बैठा था। मैं समझ गई थी कि रात को अब्बा कहाँ गया था और किसका कर्ज उतारता था। मैं जानती थी कि जो कुछ मेरे अब्बा ने जज्बात में आकर किया वो गलत किया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जो कुछ मेरे भाई ने किया क्या वो ठीक था? आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।